Hey students, welcome to this class by Piyush. The topic for the day comes out to be subject verb agreement. We're gonna pursue the part 3 of it. Let's pay focus to the first slide of subject verb agreement. This time I've got a practice set for you. I'm gonna explain the rules with this practice set. Let me just read this sentence for you. Sheetal, as well as some of her friends, have fallen in love with a hunky fellow who is the eldest son of an IS officer. Guys, focus over here. Like, for suppose we talk about Ram as well as his friends dash come. Now guys, when we talk about this, आपको पता लग रहा है कि we are talking about राम कि उसके फ्रेंड्स. सर अब ऐसे तो डायरेक्टली नहीं पता. आई टोल्ड यू कि अगर आपको बीच में एंड दिख जाए तो वो प्लूरल जाएगा. यानी कि तो पक्का ही वो क्या लगाएगा प्लूरल के लिए? हैव. बट नाउ हैर आपके पास राम है, उसके अलावा एंड नहीं मिला है, आपको एज वेल एज मिला है. तो अब क्या होगा? अब आपका जो वर्ब होगा वो राम डिसाइड करेगा, यानी कि द आंसर कम्स आउट टू बी हैज. सेम वे से गाइस पे अटेंशन. फॉर सपोज आई टॉक अबाउट द इंडियन cricketers along with the coach dash coming. ब्रैकेट में आपको दे रहा हूं एजिया आर. अब देखो जरा ध्यान से, बात हो रही है इंडियन क्रिकेटर्स की, साथ में कौन है? कोच. क्या बीच में एंड मिला है? नहीं सर, एंड तो नहीं मिला. तो चुपचाप कहाँ चले जाओगे? स्टार्टिंग में क्या है? इंडियन क्रिकेटर्स. तो क्या लग जाएगा? आर. इसी सेंटेंस को गाइस अगर मैं रिवर्स कर दूं, द इंडियन क्रिकेट कोच along with the Indian cricketers dash coming. फिर से वही है एजिया आर. क्या होगा यहां पर? इंडियन क्रिकेट कोच और साथ में क्रिकेटर्स. बीच में एंड तो नहीं है आपके पास. अब कोच के बाद अगर एंड आता तो आंसर पक्का आर होता. अभी फिलहाल आपका फोकस कहाँ गया? सारा का सारा द वर्ड कोच पे. सो आंसर वुड बी इज. Hence, we are sure from this fact the moment we talk about something starting from the first part and it is not followed by and, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा. राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू. सेम वे से ध्यान से देखें इधर. क्वेश्चन है शीतल as well as some of her friends have fallen in love with a hunky fellow who is the eldest son of an IS officer. Guys, when I mark this word Sheetal and some of her friends, आई नो फ्रॉम हेयर दैट ये जो एज वेल एज है, अगर इसकी जगह पर मुझे एंड मिला होता तो आंसर प्लूरल डैम श्योर हैव होता. लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं हुई है प्लूरल की. चेक करें. बात है शीतल की और उसके फ्रेंड्स की. सर एंड तो मिला नहीं, अब डिसाइडर होगा शीतल. तो शीतल को देखकर हैव नहीं, द आंसर हैज टू बी हैज. शीतल as well as some of her friends has fallen with in love with a hunky fellow who is the eldest son of an IS officer. Is that clear? And for the answer's sake, the answer lies. अब देखो यहां पे कैसे करना है आपको. The answer lies in option C, where you have to replace have with has.
So moving on further to this part as well. Where was the earrings that I left by the bathroom sink? Oh no, that stupid cat has sweated them down the drain again. अब now it is too clear from this fact कि जब आपने has लगाना है it would be serving as a role of a singular entity. जब आपने have लगाना है that would serve as a plural entry, right? Now pay focus over here. One more thing over here comes out to be when we talk about the word where. We know that every time a subject decides a verb. I've explained you in the previous class too, right? अब देखो now हमें पता है कि ये जो where है जैसे हमारा सब्जेक्ट मानकर रखते हैं, right? मैंने बोला where dash my car, आपने लगाया is, ओके is लगा दिया, right? अच्छा मैं अगर ऐसा बोलूं where dash my shoes, आप कहोगे where are, यानी कि एक बार आपका आंसर इज आया, एक बार आपका आंसर आर आया, है क्या ये वर्ब डिफर हो रहा है कि सेम हो रहा है? डिफर हो रहा है, तो साफ प्रूव होता है वेयर के पास इतनी पावर नहीं है, वेयर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो वर्ब डिसाइड करे, हेंस वेयर इज नॉट माय सब्जेक्ट. अगर वेयर सब्जेक्ट नहीं है, अगर वेयर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब किसने डिसाइड किया? वर्ब इसने डिसाइड किया. यानी कि द मोमेंट you want to decide or get a verb, you want to get a verb from a sentence starting with where, then क्या करना है आपको? look for the subject following the verb. ऐसा क्यों होता है ये तो मैंने आपको बता दिया. क्या हमें क्रैम करना है? नो गाइस, आई एम देयर फॉर यू, यू नीड नॉट क्रैम एनी ऑफ द रूल्स. क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? आई विल टेल यू. अ वेरी बेसिक थ्योरी इट इज. नाउ पे अटेंशन. Piyush is taking classes or a class, right? Is क्या है? Helping verb. Taking क्या है? Action verb. Piyush क्या है? Subject. Subject, helping verb, action verb, right? ये आया लास्ट में आपके पास बड़ा बड़ा लगाता हूं फुल स्टॉप. अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूं, यानी इस फुल स्टॉप को मैं क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना चाहूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? एब्सोल्युटली यस. कैसे? इज Piyush taking classes? This has become your answer now. Hence, it is crystal clear from the fact the moment we talk about anything, it has to be related to subject, verb, full stop. If it gets reversed, verb, subject, it becomes a question mark. तो अगर आप where वाले रूल को बारीकी से देखेंगे, you'll get to realize ये रहा where. तो ये तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट है. यू कैन सी द क्वेश्चन मार्क ओवर हेयर. यानी कि जो मेरा आंसर होने वाला है इसका, वो शेयर डिपेंड करेगा आगे फॉलो होने वाले पर. फॉलो क्या हो रहा है? ईयर रिंग्स. अच्छा बस इतना बता दो गाइस, छोटा सा पार्ट आपसे पूछ रहा हूं. इतनी नॉलेज तो नहीं है ईयर रिंग्स के बारे में मुझे, बट हाँ आई कैन आस्क यू आउट. ईयर रिंग्स डैश ब्यूटिफुल. सर इयररिंग्स अच्छे हैं, आर ब्यूटीफुल. सुंदर दिखते हैं कि दिखता है? सर दिखते हैं. अच्छा एक घूम हो जाए तो वी कैन से इट कि हम ना इसको कवर कर लेंगे एस को, तो इट वुड से इयररिंग इज ब्यूटीफुल. तो प्रूव क्या होता है? इयररिंग्स हो तो आर, इयररिंग हो तो इज. सिमिलर वे से
व्हेन यू नो दैट यहां पर ईयर रिंग्स है तो ईयर रिंग्स तो प्लूरल लगाएगा आर, और पास्ट में प्लूरल क्या हो जाता है, वर। तो देयरफॉर द आंसर कम्स आउट टू बी वॉज की जगह वर। ऑप्शन जो आंसर का होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, रिप्लेस वॉज विद वर। मतलब वी आर डिगिंग डीपर इनटू द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। Make sure you're not cramming any of the rules. You can get the rules anywhere in the books. You can get into all those YouTube classes too. But where the point when we talk about this thing, it is sheer knowledge based. Definitely, I'm gonna take deeper into the mixed sentences as well, along with the topics also. So moving on to further, let's pay focus to the next slide. Agnes never loses a single possession. Everyone knows what belongs to her. For each pen, pencil, and paperclip have a tiny flag attached with Agnes' full name on it. Guys, now when we talk about this, let's check this too. बड़ा सिंपल सा थ्योरी पहले चेक करेंगे. Agnes is a name or are a name? Agnes is a beautiful name. Agnes ने क्या लगाया, is का मतलब सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, सिंगुलर, तो इट शुड बी Agnes never lose और loses. सर loses होना चाहिए ना, क्योंकि आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ठीक है loses लगा देते हैं. लेट्स पे फोकस, इतने में loses आया है कि नहीं आया. Agnes never loses. सर ये तो करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं. अ सिंगल पोजेशन, ओके, फुल स्टॉप तक देयर इज नो एरर, कंप्लीटली फेयर, राइट. मतलब इट इज ऑल करेक्ट ओवर हेयर, तो वी कैन मार्क राइट ओवर हेयर. एवरीवन नोज व्हाट बिलोंग्स टू हर. गाइज अब देखो एक बात और, हमें इतना पता है, वो आपने वर्ड सीखे थे लास्ट क्लास में, ईच. आई विल एक्सप्लेन यू अगैन. एवरीवन, साथ में वर्ड भी आ जाएगा एवरीबॉडी, राइट. I can say about the word anybody related with anyone too. I can say about someone along with somebody, no one, nobody, none, one. What are these? These when come into a subject formation, यानी जब ये स्टार्टिंग में लगते हैं, these follow a singular helping verb. यानी each one of them is coming. Everyone is, anybody is, someone is, no one is, nobody is, none is, one is. The moment we talk about anything starting from these, that takes a singular helping, like is, has. It is someone has stolen my books, not someone have. तो ये सारे क्या लगाएंगे, सिंगुलर, राइट. अब देखो आपके पास आया एवरीवन, तो नोज तो लगेगा ही, तो ये भी करेक्ट है. अब फिर क्या आया, ईच. ईच के बाद सिंगुलर आएगा, ईच पेन, पेंसिल एंड पेपर क्लिप हैव अ टाइनी फ्लैग. नहीं नहीं सर, स्टार्ट तो ईच से हुआ है, तो इट हैज टू बी हैज. यानी द आंसर ओवर हेयर कम्स आउट टू बी हैव की जगह हैज. तो आंसर आया कहां पर, ऑप्शन नंबर सी, जहां पर आपको हैव को काट कर हैज से रिप्लेस करना है. I hope it is clear to you. Moving on further. The question says, this week, a great white shark, as well as school of barracuda, are terrorizing the tourists at Daitana Beach. थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस क्वेश्चन को. ग्रेट वाइट शार्क, a school of barracuda. I'll explain you the word school over here too. जैसे ना फिश है, हॉर्स है ना, हॉर्स, हॉर्सेज होता है उसका प्लूरल.
फिश का प्लूरल फिश भी रहता है, फिशेस भी रहता है, डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज। स्पीशीज अगर मल्टीपल हो जाए तो फिशेस हो जाएगा, स्पीशीज अगर सिंगुलर की रहे और बहुत सारी फिश हो जाए तो फिश होता है, यानी ये दोनों वर्ड्स प्लूरल है। ठीक है जी। अच्छा, वेयर वीवर, लाइक फॉर सपोज आई टॉक अबाउट द वर्ड शीप, राइट, बीच में मैंने यूज कर लिया वर्ड ऑफ। अब इनका ग्रुप तो होगा कुछ, इनके ग्रुप के नाम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे फिश के ग्रुप को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश, हॉर्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लाइट ऑफ हॉर्सेस, शिप के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। क्या हुआ यहां से, यानी कि they have got different meaning when they come in great number. Now this rule in English is nothing, it's a very simple rule. It is termed as collective noun, कि जब उनको कलेक्ट कर देते हैं ना तो उनको एक नाम दिया जाता है। सो बैराकुडा, अगर स्कूल लगा रहा है तो स्कूल का मतलब डेफिनेटली किसके लिए होता है, फिश के लिए, तो बैराकुडा इज अ टाइप ऑफ फिश। अब इसने आर लगाया, क्यों लगाया, सर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट वाइट शार्क, तो आर का तो मतलब ही नहीं क्योंकि बीच में एंड नहीं आया है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी इज, हेंस वी कैन से दैट डायरेक्टली रिप्लेस आर बाय इज। I hope this is clear again. The iguana is only one of my brother's reptiles that does not require live rodents for dinner. Just take a while, guys. Just take a while. I'm giving you exactly 30 seconds into this. Can you find the error in this? Let's check this out. Quick. Your time starts now. The 30 seconds. Hurry up, hurry up. I'm waiting for your answers. Your time is going to end in 5 seconds. A 5, a 4, a 3, a 2, and a 1. Check this one out. I've got so many answers by the way. Let's एक बार चेक कर लेंगे फिर भी कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। अच्छा गाइज, रूल को नाम भी दे देते हैं कुछ, है ना, रूल पढ़ रहे हैं तो। दीज आर रिलेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं रिलेटिव सेंटेंसेस, कुछ नहीं होते, बड़े सिंपल से होते हैं। जैसे आपके रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जहाँ पहचाना ना जा सके। आप एक फैमिली में गए पहली बार, आपने देखा कि एक अंकल आंटी हैं, एक और अंकल आंटी हैं, बेसिकली वो इनके चाचा चाची थे। क्या आपको पता लगेगा वो इनके चाचा चाची हैं? नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता लगेगा कि भाई ये जॉइंट फैमिली है या ये कुछ दिनों के लिए आए हैं, छुट्टियों में वेकेशन में आते हैं ना, हमें तो ये भी नहीं पता लगेगा। सो वॉट इज इट, इट मीन्स वी आर नॉट श्योर लाइक आवर रिलेटिव्स द बॉन्ड, बट वी आर डैम श्योर अबाउट दिस, एक्चुअली फैमिलीज तो टू हैं, क्योंकि आपको दो कपल्स दिख रहे हैं तो डेफिनेटली फैमिली भी कितनी होंगी, टू होंगी। फेयर इनफ। ये जो नाम दिया गया रिलेटिव सेंटेंसेस, ये क्यों दिया गया है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू। सो वी वर इनटू रिलेटिव सेंटेंसेस, ये नाम क्यों दिया जाता है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। फॉर सपोज आई टॉक अबाउट, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस ओवर हेयर, आई टॉक अबाउट राम is one of the boys who is playing। मुझे बस इतना बता दो, ये एक सेंटेंस है कि दो हैं। कुछ लोग कहते हैं बॉयज तक एक है, हु इज प्लेइंग एक है, दो हैं, राइट गाइज। अगर सेंटेंसेस दो हैं तो इनमें सब्जेक्ट भी दो होने चाहिए, जैसे पहले वाले में राम है तो राम ने तो इज लगा दिया। अब जो अगले वाला वर्ब है, देखो वर्ब को डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट ना। अब जो ये वाला वर्ब है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा द वर्ड बॉयज।
सो एक्चुअली में बॉयज को देखकर इज नहीं लगेगा, द आंसर वुड बी आर, यानी द फुल सेंटेंस कम्स आउट टू बी राम इज वन ऑफ द बॉयज हु आर प्लेइंग। तो यहां से क्या पता लगा सर? यहां से ये पता लगा, द मोमेंट वी टॉक अबाउट दिस, हमें बहुत सिंपली ये देखना है कि एक्चुअली में कौन सा सब्जेक्ट कौन से वर्ब को डिसाइड करा रहा है। लेकिन बिफोर वी मूव फर्दर, अब ऐसा तो है नहीं कि रूल में एक्सेप्शन ना आए, चेक करना। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इंडिया इज ओनली वन ऑफ द कंट्रीज विच, यहां पे लगा दिया मैंने डैश, डेवलपिंग। रूल बड़ा सिंपल था, इंडिया ने लगाया इज, कंट्रीज ने लगा देना है आर, तो आंसर वुड बी विच आर डेवलपिंग। बट जस्ट वाइल गाइस, आपको सेंटेंस में ओनली वर्ड मिला है। जब सेंटेंस में ओनली वर्ड मिल जाए, यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू सिंगुलर, बिकॉज ओनली का मतलब होता है सिर्फ। इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो डेवलप कर रही है, यानी कि द आंसर वुड बी इज। हेंस प्रूव क्या होता है? मेरा छोटा सा रूल कहता मान लिया फर्स्ट वाले वर्ब को डिसाइड करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट वाले वर्ब को, सेकंड सब्जेक्ट सेकंड वाले वर्ब को। बट अगर सेंटेंस में ओनली आ जाए तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट ही दोनों के वर्ब्स को डिसाइड करता है। बस सिंपल एज दैट। इगुआना ने लगाया, पे फोकस ओवर हेयर, इगुआना ने लगाया इज। रेप्टाइल्स को लगाना चाहिए डू, लेकिन ये लगा रहा है डज। क्यों? क्योंकि यहां पर ओनली वर्ड है। सो मार्क माई वर्ड्स, जब आपको सेंटेंस में गाइज ओनली दिख जाए तो वहां रूल चेंज हो जाएगा। आई होप दैट कम्स आउट टू बी क्लियर। मूविंग ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट लाइन, इट सेज द फ्लैमिंग ऑरेंज पॉलिस्टर pants together with a beehive hairdo make Betty stand out among all the shoppers at the mall. Yeah, all the other shoppers, yeah, other shoppers at the mall. This one comes out to be an easy one, I guess. The reason, flaming orange polyester pants. साथ में आया hairdo, बीच में आपके पास क्या आया? सर एंड तो नहीं आया, तो चुपचाप कहाँ चले जाएंगे? Pants. Now pants is या are dirty? It would be pants are dirty. सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ये तो प्लूरल आ रहा है, तो इट शुड बी मेक। मेक तो रखा हुआ है, तो बस when there is no error mark it as no error, इसमें कोई एरर नहीं है। मेक श्योर यू आर कंटिन्यूइंग दैट फैक्ट कि नो एरर भी तंग करता है आपको, तो नो एरर से बच के रहना। नेक्स्ट, every love bug smashed on his windshield, every cockroach poisoned by insecticide, and every trapped spider starving to death in a dusty corner causes an inspiring Buddhist a pang of guilt. अब हम फास्ट करने वाले हैं, लेट्स पिक अप पेस। आपने बोला था एवरी के साथ स्टार्ट होगा तो सिंगुलर होगा, राइट? हाँ, तो किससे स्टार्ट हुआ? सर ये सेंटेंस तो स्टार्ट हुआ है एवरी से, ठीक है, तो सिंगुलर लगा लो। एवरी, ये रहा एवरी, पॉइजन बाय एन एवरी। एवरी एवरी कहाँ है? वर्ब ही नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी कॉर्नर कॉजेस, इट हैज टू बी कॉज और कॉजेस। सर कॉजेस ही होगा क्योंकि एवरी से स्टार्ट हुआ है। बस फेयर इनफ, द आंसर हैज टू बी नो एरर। मार्क माई वर्ड्स, नो एरर से बचकर रहना। इतना आपको किसी ने तंग नहीं किया होगा जितना नो एरर ने किया होगा लाइफ में। देयर इज मैनी मिसकंसेप्शंस। अभी थोड़ी देर पहले ना वी रेड वन थिंग, पहले ये देखते हैं। देयर इज मैनी मिसकंसेप्शंस अबाउट गोरिल्लास। द मोस्ट डैमेजिंग इज दैट दीज primates are ferocious, crazed killers like King Kong.
मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर, वो वेयर वाला याद है कि भाई वेयर में इतनी पावर नहीं होती कि वो वर्ब को डिसाइड कर ले, राइट। तो क्या करते हैं, आप हेयर को देखते हैं, आप देयर को देखते हैं, ये भी सेम रूल फॉलो करते हैं। मतलब अगर आप हेयर और देयर की बात करेंगे, ये भी सेम रूल फॉलो करेंगे। यानी इनके पास पावर नहीं है वर्ब डिसाइड करने की, जो फॉलो पार्ट होगा वो उनके पास है। जैसे हेयर डैश माई शूज, दैट शुड बी हेयर आर माई शूज। देयर डैश माई टी शर्ट, देयर इज माई टी शर्ट। वैसे तो इनको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर तो जा नहीं रहे, ना शूज़ पहन रहे हैं ना ही न्यू टी शर्ट्स पहन रहे हैं, 2-3 कपड़े हैं, उसी से सारा दिन निकल जाता है ना, पूरा हफ्ता निकल जाता है इनफैक्ट। चले, फोकसिंग, यहाँ पे देयर की बात हो रही है। देयर से इज या आर, इट शुड बी आर। देयर आर मैनी मिसकंसेप्शंस, क्यों मिसकंसेप्शंस को देखकर। अगर मैं ऐसा करूं, देयर डैश अ मिसकंसेप्शन, तो आपको पता है मिसकंसेप्शन तो सिंगुलर है, तो इट शुड बी इज फॉर यू। 200 buckets of sand fill the interior of Mr. Clark's new car. कुछ नहीं करना, 200 buckets किसके हैं, सैंड के। अच्छा देखो, 200 बाल्टियां पड़ी हैं सैंड की, सैंड पड़ी है कि बेसिकली बाल्टियां पड़ी हैं? सर वो तो बोल रहा है बाल्टियां पड़ी हैं। इट इज क्लियर कि द मेन सब्जेक्ट इज 200 buckets। प्लूरल है कि सिंगुलर है? सर 200 buckets आर होता है तो ये लगाएगा प्लूरल, प्लूरल है तो फिल्स के फिल, सर फिल ही रहेगा, यानी कि द आंसर कम्स आउट टू बी नो एरर, एज सिंपल एज दैट। एवरीवन, बस ये मेरे से करवा लो। क्यों? सर आपने बोला था कि अगर एवरी, ईच या उन सब वर्ड सम एनी से स्टार्ट होगा तो वर्ब आएगा सिंगुलर, सम वन एनी वन, राइट, नॉट विथ सम वन। अब देखो जरा ध्यान से, ये आया आपके पास द वर्ड एवरी, जस्ट अ वाइल, एवरी वर्ब आएगा सिंगुलर। इंजॉय, ना सर इंजॉयज लगाओ बिकॉज द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर फॉर डैम श्योर। So I hope you got this thing out. Guys, first of all, if you're starting with me, told you my name is Piyush, and the special effect, yani ki digging into the logic, will be there for sure. ये तो पक्का रहेगा ही रहेगा। Plus, when we talk about other things as well, मैं आपको इतना बता दूं कि you will never regret your decision studying at Gyanam, because the moment we realize studying at Gyanam, it means you are going into the flow, into the logic. For any information you want, for anyone, you can contact 9117 343434। थैंक यू, एंजॉय। और आपको आई होप कि ये क्लियर भी हो गया है कि एक्चुअली में है क्या।